Good morning. Can both of you clearly see? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So let's get started. Yesterday I discussed about exponential function. What does an exponential function do? It magnifies things, correct? That's what I told. Now logarithm, what it does is it compresses things. So log is a compressant. Log is a compressant, and exponential function, you can say it is a magnifier. In elementary terms, that's what I can say, right? Now let us understand how it is related. So you will be learning logarithms because this is an important tool, you can say, and you get questions from this also. So as per the basic definition, see if I go, see if I write anything of the form a to the power x, see it is always a positive quantity, correct? Now a to the power x, if I'm assuming this as n, then what are the conclusions you draw? See, n is always positive, x is always a real number, and the base, this should lie between 0 to 1, union 1 to infinity. See, these are the things I explained yesterday. I hope this part is clear to both of you. See, in case of a to the power x, if I'm writing, see, a to the power x will always give you a positive quantity. Yesterday you have seen. Now the base, it has to lie between 0 to 1 and 1 to infinity. And the power, that is the index, it can be any real quantity. Clear? Now, if this is your n, then we define log of n with respect to base a. Now this is equal to nothing but x. So logarithm of any number. Now with respect to a certain base, it is the power to which the base should be raised in order to get that number. So what is logarithm of any number? The power to which the base should be raised. The base should be raised in order to get that number. In order Clear? to get the number. Now, logarithm of any number, see, it will be defined under these conditions. देखो, log कब defined होगा? जब ये number जिसका हम log ले रहे हैं, वो क्या होना चाहिए? Positive. और base क्या होना चाहिए? It should be a positive quantity, but it should never be equal to 1, right? So when is log of any number defined? What are the criteria? The number should be positive, the base should be positive, and the base should not be equal to 1, correct? So you will use this condition to find the validity of log also. Like for example, if I am writing a variable expression like this, say I am writing log of 1 minus x and base 2x. And I ask you, what are the conditions that should be imposed on x so that this expression is defined? So then I'll be applying simply these conditions, whatever I told. तो देखो ये डिफाइंड कब होगा बताओ? नंबर यहाँ पे क्या है? 1 minus x, और 1 minus x क्या होना चाहिए? पॉजिटिव. यानी x क्या लिखेंगे? लेस देन 1. देखो ये पहला कंडीशन हो गया. What is the base here? 2x. तो 2x पॉजिटिव होना चाहिए, यानी x क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0. ये सेकंड कंडीशन. और बेस क्या नहीं होना चाहिए? x should not be equal to half, and that is your third criteria, correct? अब अगर ये तीनों को इकट्ठा करते हो तो देखो x less than 1 यानी 1 का लेफ्ट साइड देखो ये लाइन सिग्निफाई करता है x less than 1, ग्रेटर देन 0 ये सिग्निफाई करता है, लेकिन बीच में ये हाफ पॉइंट भी नहीं हो सकता है, तो हाफ पॉइंट को हम एक्सक्लूड कर देते हैं. तो अब देखो कॉमन रीजन कितना आया? 0 से हाफ union half to 1. So this is the region where this expression will be defined. तो ऐसे जब सारे cases में variable होगा, तो this is the condition that you should apply. Okay?
तो when is log of any number defined? When the number is greater than more 0. than number positive, base Number is positive, positive, and base is positive, and base is and base and base lies between 0 to 1, and base is not equal to 1. right. Simply you'll say like this: कि base is positive but not equal to 1. Clear? How you will apply this? Now let me explain this by taking some numbers which we did yesterday. अब देखो, कल हम लोगों ने लिखा था 2 का पावर -3 कितना होता है? देखो 1/8 होता है. अब ये डेफिनेशन इस्तेमाल करना है हम. देखो, if this is equal to n, तो then log n with respect to base a is how much? X. So will I write log of 1/8 with respect to base 2 is nothing but -3. देखो, ऐसा लिख सकते हैं. देखो, ये स्टेप समझ में आया? देखो, 2 का पावर -2 1/4 होता है, तो log of 1/4 with respect to base 2, that will be how much? -2. Similarly, 2 का पावर -1 1/2 होता है, so log of 1/2 with respect to base 2, this is nothing but -1. देखो, 2 का पावर 0 1 होता है, तो log of 1 with respect to base 2 will be 0. Similarly, 2 का पावर 1 2 होता है, तो देखो log 2 with respect to base 2 हम क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे. 2 square 4 है, तो log of 4 with respect to base 2 we will write 2. 2 cube is equal to 8. तो अब हम लिखेंगे log of 8 with respect to base 2 is how much? 3. देखो, तो I am using the definition of exponential function which we discussed yesterday. और देखो, साथ में log का हमने definition use किया. तो अब यहाँ पे देखो, अब कोई दूसरा वैल्यू भी हम लेके देख सकते हैं. Suppose I am writing, say 10 to the power -3. या 10 to the power -2 is how much? 1/100. तो log of 1/100 with respect to base 10 हम कितना लिखेंगे बताओ? -2. Yes. 10 to the power -1 1/10 होता है, तो बताओ log of 1/10 with respect to base 10 कितना होगा? -1. माइनस. वेरी गुड. 10 to the power 0 1 है, तो log 1 with respect to base 10 क्या लिखेंगे? 0. 0. 10 to the power 1 10 है, तो बताओ log 10 with respect to base 10 कितना होगा? 1. 10 square 100 है, तो देखो log of 100 with respect to base 10 क्या लिखेंगे? 2. 2. Similarly, 10 cube is 1000. So log of 1000 with respect to base 10, what will we write? 3. 3. अब देखो, इतने बड़े नंबर का लॉग देखो, एक छोटा सा वैल्यू आया 3. 100 का लॉग देखो कितना आया? 2. So that is why we say this is a compressant. Correct? ये क्या करता है? बड़े नंबर्स को, बड़े नंबर्स को छोटा करके दिखा सकते हैं हम इससे using logarithm. Now if you have understood this, should I rub this part? Yes, sir. देखो, ये समझ में आया? ऐसे एक्सप्रेशंस हम लोग यूज करेंगे वैलिडिटी को चेक करने के लिए. वैलिडिटी मतलब लॉग वैलिड कब होता है? नंबर पॉजिटिव, बेस नॉट इक्वल टू 1. ये 3 छोटे छोटे कंडीशन है. क्लियर? अब देखो, ये एनालाइज करने के लिए कि इसका बिहेवियर कैसा होगा, मैं फिर से वैसे ही x और y मान के इसको प्लॉट करूंगा. अब यहां पे ऐसे सोचो कि दिस इज log of x with respect to base 2 और ये मैंने y लिखा. ठीक है? तो now it becomes a function of x. अब हम देखो, x जब 1/8 हमने पुट किया यहाँ x पे, y का वैल्यू कितना है बताओ? -3. राइट? तो 1/8 -3 पे ये कोऑर्डिनेट एक्सिस पे एक पॉइंट देगा. फिर देखो 1/4 -2 half -1 1 0 2 1 4 2. देखो I get all these points. देखो, कुछ बातें तुम यहां से भी मार्क कर सकते हो, ध्यान से देखना.
देखो 1/8 से जब 1/4 गए तो हाउ मच इज द इंक्रीज इन एक्स? एक्स कितना इंक्रीज किया? 1/8 यूनिट्स। लेकिन y कितना इंक्रीज किया? 1 यूनिट। -3 से -2 हो गया, मतलब क्या इंक्रीज किया? देखो दिस नंबर इज लार्जर, दिस नंबर इज लार्जर। तो देखो नंबर तुम्हारा बढ़ रहा है, इसका मतलब ये क्या है? ये इंक्रीज कर रहा है कि नहीं? राइट? अब मैं इन सारे पॉइंट्स को मार्क करके जोड़ने का कोशिश करता हूं। देखो पहले 1 लेते हैं, तो 1,0 देखो यहां पे आएगा पॉइंट, क्यों? x1 पे y0 है, और y0 कहां होता है? x एक्सिस पे। अब देखो x2 है तो y1 है, तो x इक्वल टू 2 अगर हमने पुट किया तो देखो y इक्वल टू 1, यानी ये पॉइंट यहां पे आएगा, ये सपोज करो 1। अब x देखो जब 4 कर रहे हैं तब y2 हो रहा है, तो देखो y is 2 here सपोज, और ये मान लो यहाँ 4 पे होगा, से दिस पॉइंट इज 4 here। अब यहाँ देखो हाफ पुट कर रहे हो, तो देखो इफ आई पुट हाफ here you get -1। देखो ये यहाँ पे आएगा, उसके बाद देखो 1/4 पुट कर रहे हो तो ये -2 हो रहा है, दैट मीन्स लाइक दिस। अब इन सारे पॉइंट्स को इनफैक्ट देखो 1/8 पुट करोगे तो -3, यानी यहाँ आएगा। तो इफ आई जॉइन ऑल दीज पॉइंट्स in a smooth manner, see it will form a graph like this। देखो ऐसा टाइप का ग्राफ बनेगा, ये और दूर में जाके 4 होगा, तो ऐसे टाइप का एक ग्राफ ड्रॉ कर पाएंगे हम लोग। अब देखो इस ग्राफ से क्या चीज क्लियर होता है? देखो इसका नेचर क्लियर हो रहा है। देखो ध्यान से, ये इंक्रीज कर रहा है कि नहीं? तो बेस जैसे ही देखो मैंने 1 से बढ़ा लिया, दिस इज नथिंग बट इट इज इंक्रीजिंग इन नेचर। और एक्स एक्सिस के ऊपर जब भी कोई चीज होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? y वैल्यू उसका कितना है? y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। और एक्स एक्सिस के नीचे होता है तो वो क्या होता है? y coordinate नेगेटिव। करेक्ट। तो देखो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x लाइंग बिटवीन 0 एंड 1, देखो ये क्या है? एक्स एक्सिस के नीचे है, इसका मतलब ये क्या है? नेगेटिव है। देखो x जब 1 से बड़ा ले रहे हो तो ये क्या है? पॉजिटिव है। और इनफैक्ट देखो जैसे बेस 2 के लिए है, या 2 क्या है? 1 से बड़ा नंबर है, तो बेस 2 के लिए जैसा शेप है वैसा ही शेप लगभग 3 के लिए, 4 के लिए, एनी नंबर, if the base is any number greater than 1, it will have a shape like this। तो log x, अब देखो मैंने क्यों कहा था कि ये मिरर इमेज है। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे जो बता रहा हूं वो ध्यान से देखना। देखो मैं तो इसी ग्राफ पे बता दूंगा, बट यू कैन ड्रॉ अ सेपरेट वन। देखो एक छोटा सा बात याद रखना कि ये y इक्वल टू x लाइन ऐसा होता है, ठीक है? दिस इज द लाइन y इक्वल टू x। If I have any point here alpha beta, अब इसका रिफ्लेक्शन about y equal to x line will be always beta comma alpha। ये एक छोटा सा बात याद रखो, इसका ये सिखाएंगे स्ट्रेट लाइन में। तो अल्फा बीटा का रिफ्लेक्शन बीटा अल्फा होता है, करेक्ट? अब देखो अगर मैं यहाँ 2 to the power x equal to y, अगर इसको कंसिडर करता हूं तो देखो कल ही हम लोगों ने ड्रॉ किया था। देखो x जब 0 है, y कितना है? 1, यानी देखो 0 1 ये पॉइंट से पास करेगा, करेक्ट? देखो x 1 पुट करो, y कितना है? 2, तो x इक्वल टू 1 पे y 2 देखो यहां पे होगा, यानी 1,2 पॉइंट, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे है। अब देखो -1 पुट करो तो हाफ है, तो देखो -1 यहां अगर हम पुट करेंगे तो ये हाफ यहां आएगा, तो -1, हाफ इज अ पॉइंट। इनफैक्ट देखो अब इनको जोड़ो, तो देखो ये अगर हम ज्वाइन करते हैं, देखो ये ऐसा टाइप का ग्राफ बनता है। अब बीच में से मैंने y इक्वल टू x ड्रॉ किया, तो देखो नाउ आई होप यू कैन गेट दिस पॉइंट। देखो ध्यान से,
इसका रिफ्लेक्शन देखो, ऐसा नहीं लगता है कि मैंने जस्ट इस ग्राफ को इधर फ्लिप कर दिया Yes, sir. and I am getting so exponential function and logarithmic function, दोनों का बेस अगर सेम है तो दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज होता है अबाउट द लाइन y इक्वल टू x। दोनों मिरर इमेज है। देखो ये y इक्वल टू x है, ये y इक्वल टू log x विथ रेस्पेक्ट टू बेस 2 है, ये y इक्वल टू 2 टू द पावर x है। देखो दोनों का बेस सेम है, दे आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। तो दोनों ही एक ही चीज का दो कंपोनेंट है, एक मैग्नीफाई करता है, एक कॉम्प्रेस करता है, ठीक है, दे आर रिफ्लेक्शंस। तो एटलीस्ट ये नेचर समझ में आया कि देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी जब बेस 1 से बड़ा है तो इंक्रीजिंग है, कल ही सिखाया था। लॉग का भी बेस अगर 1 से बड़ा है तो वो इंक्रीजिंग ही होगा, उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। For all numbers greater than 1, log is positive. For all numbers fraction, देखो log is negative. देखो 0 के लिए log डिफाइंड है क्या? नहीं है। Yes. या नेगेटिव नंबर्स के लिए log डिफाइंड है? देखो वो भी नहीं है। क्लियर? देखो इसमें कोई कंफ्यूजन? No, sir. I hope this part is clear to you. और ये याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, एक्सपोनेंशियल और लॉग। अब देखो लॉग जनरली का स्टैंडर्ड बेस भी कुछ होगा ना, क्योंकि बेस तो हम कुछ भी ले सकते हैं। मैंने अभी क्या लिया था, कोई भी जनरल। तो जब ऐसे लिखा जाए, याद रखो सिंपली ऐसे लिखा गया, तो दिस मीन्स द बेस इज 10, राइट? बेस इज 10, दिस इज द स्टैंडर्ड, ओके। और इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, log x with respect to base 10। लेकिन कभी देखोगे ऐसे लिखा गया है ln x, आगे चल के बहुत जगह क्वेश्चन जब तुम आगे भी पढ़ोगे तो देखोगे कि ऐसा भी एक्सप्रेशन आएगा। तो देखो इसका मतलब क्या है, तो इसको राइट, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं log x with respect to base e। e क्या है, तो e actually Napier's number, this is Napier's number, और ये निकाला जाता है इस तरीके से, ये 12th में लिमिट थोड़ा सीखोगे तब समझ में आएगा। 1 + x होल टू द पावर 1/x, इसका जो वैल्यू आता है ना, यही होता है नेपियर्स नंबर। और अप्रोक्सीमेटली ये तुम एक डेसिमल प्लेस तक भी याद रख सकते हो, 2.72 या 2 डेसिमल प्लेस तक। तो जब भी ln लिखा जाए मतलब log का बेस क्या है, e, दैट इज योर नेपियर्स नंबर, और कुछ नहीं लिखा गया है, सिंपली log x मतलब बेस क्या है, 10, करेक्ट। अब मैं पहले एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज बताता हूं। तुम दोनों में से log पहले कौन पढ़ा है, थोड़ा सा 8, 9, 10th में? Yes, sir. पढ़े हैं। Yes, sir. 8, 9, 10th में कहां तक पढ़े हो? The basic log properties. अच्छा, बेसिक लॉग प्रॉपर्टीज तक पढ़े हो। अच्छा, लॉग निकालना, एंटी लॉग निकालना, ये सब सीखे हो ना? Anti log नहीं सीखा। नहीं, एंटी लॉग देखो जब हम ये लिखते हैं, देखो a to the power xn है, तो हम ये लिखते हैं log n with respect to base is x। देखो जब यहां से यहां लिखा तो ये लॉग हो गया, यहां से यहां लिखते हो तो ये लॉग हुआ, और यहां से यहां लिखते हो तो यही चीज एंटी लॉग कहलाता है, ठीक है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एंटी लॉग। देखो कॉमन एग्जांपल जैसे चाहो तो लिख लो कि फाइंड द एंटी लॉग, अगर ऐसे सवाल पूछा, फाइंड द एंटी लॉग ऑफ 0.75 with respect to base 16, with respect to base 16। तो देखो इसमें कुछ नहीं करना है, देखो बेस तुम्हारा 16 है, इसको बेस रहने दो, और इसका पावर कर दो 0.75। क्यों? इसी का नाम एंटी लॉग चाहिए। लॉगरिथम एक्चुअली है क्या, द पावर टू विच द बेस इज रेज्ड। तो एंटी लॉग का वैल्यू इतना होगा। अब 16 क्या है, 2 का पावर 4, 0.75 क्या है, 3/4, ओके। So this becomes 2 cube and that is nothing but 8. So anti-log of
0.75 with respect to base 16 is this much. तो देखो ये बहुत सिंपल चीज है कि नहीं? Yes, sir. Should I rub this one? Yes, sir. मैं भी पहले बेसिक प्रॉपर्टीज बताऊंगा, लेकिन वो बेसिक प्रॉपर्टीज में 10 प्रॉपर्टी है, वो तुम्हारा एनालिटिकली बेस्ड है, और बाकी 5-6 प्रॉपर्टीज हैं जो ग्राफिकल बेस्ड है. तो फर्स्ट बेसिक वाला समझोगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है? फिर ग्राफिकल पार्ट पे आएंगे. लेकिन उससे पहले एक और चीज मैं ले रहा हूं, बेस को अब फ्रैक्शन कर दो. देखो बेस को अगर मैंने फ्रैक्शन किया, सपोज मैंने 1/3 का पावर x, अब मैं ये निकाल रहा हूं, ठीक है? Now can you see clearly, all of you? Both of you? अब x और y का वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करो. चलो बोलो, अगर -3 डालते हैं तो इसका वैल्यू कितना हुआ बच्चे? 27. 1/3 के पावर -2 डाल दिए तो 9, -1 डालते हो तो 3, और हाँ 0 डालते हो तो 1, 1 डालोगे तो 1/3. If I put 2 here, I get 1/9. Like this you will get, correct? अब log का definition का इस्तेमाल करो. तो देखो इससे हम क्या लिखेंगे? Log of 27 with respect to base 1/3. This will be how much? -3 according to basic definition of log. अब बताओ log 9 with respect to base 1/3 क्या लिखोगे? बोलो डेफिनेशन का इस्तेमाल करके बोलो. -2. गुड. log of 3 with respect to base 1/3 क्या लिखेंगे? -1. -1. log of 1 with respect to base 1/3? 0. log of 1/3 with respect to base 1/3? 1. log of 1/9 with respect to base 1/3 कितना लिखोगे? 2. अब देखो, now suppose it is log x with respect to base 1/3 equal to y. तो अब देखो नीचे से ऊपर की तरफ जाओ, देखो ध्यान से, ऐसे देखो x इंक्रीज इस डायरेक्शन में कर रहा है. देखो इन दिस डायरेक्शन, देखो 1/9, 1/3, फिर 1 हुआ, 3 हुआ, 9 हुआ, 27 हुआ. तो x इधर से जाओगे तो इंक्रीज कर रहा है. Yes, sir. देखो वैल्यू ऑफ y क्या हो रहा है? 2, 1, 0, -1, -2, -3 क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है कि इंक्रीज कर रहा है? Decrease. यानी जब बेस फ्रैक्शन है तो लॉग क्या करेगा? डिक्रीज करेगा. अब इन वैल्यूज को अगर हम प्लॉट करते हैं, देखो सेम तरीके से x एक्सिस y एक्सिस, देखो x = 1 पे ये 0 है, तो ये मान लो तुम्हारा 1 है, और यहाँ पे ये 1, 0 पॉइंट देगा. उसके बाद देखो 1/3 पे ये कितना है? 1. तो 1/3 ऑफ दिस लेंथ यानी 1/3 पे ये हो जाएगा 1, यानी अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे आएगा. अब इसका भी 1/3 यानी यहाँ पे ये हो जाएगा 2. फिर इसका 1/3 और करोगे तो ये हो जाएगा 3. देखो इनको जब जोड़ोगे इन सारे पॉइंट्स को, तो इट विल फॉर्म अ ग्राफ समथिंग लाइक दिस. देखो ये ऐसा टाइप का एक स्मूथ कर्व फॉर्म करेगा. ओके देखो दिस इज द काइंड ऑफ कर्व इट विल फॉर्म. देखो दिस इज y = log x with respect to base 1/3. Now why I have drawn this? That is a very important observation which you can draw from here. देखो ये ग्राफ x एक्सिस के ऊपर कब है? x का कौन सा वैल्यू के लिए ऊपर है ये बताओ. देखो बिटवीन 0 and 1. Yes, sir. देखो फॉर x लाइंग बिटवीन 0 and 1, यानी x जब फ्रैक्शन है तब देखो ये पॉजिटिव है. x greater than 1 के लिए ये क्या हो गया बताओ? नेगेटिव. लेकिन पिछले केस में देखो उल्टा था. पिछले केस में देखो 0, 1 के लिए नेगेटिव था, राइट? 0, 1 के लिए नेगेटिव था, और 1 से बड़ा के लिए क्या था? पॉजिटिव. लेकिन अब 1 से बड़ा के लिए नेगेटिव हो गया. तो देखो यहाँ पे एक छोटा सा एस्पेक्ट जो मैं बताना चाहता हूं वो देखो. तो अब यहाँ देखो लॉग मान लो n है और बेस a है.
तो अब यार ये देखो x मेरा नंबर है 1/3 बेस है, x 1 से बड़ा है, देखो बेस 1 से छोटा है, नंबर ग्रेटर देन 1, बेस फ्रैक्शन यानी लेस देन 1, देखो लॉग नेगेटिव है। लेकिन पिछला केस में क्या था, n ग्रेटर देन 1, राइट, सॉरी a ग्रेटर देन 1, n लेस देन 1, लॉग क्या था, नेगेटिव था। ये ऐसा था ना, देखो ये था log x विथ रेस्पेक्ट टू बेस 2, तो देखो a तुम्हारा 1 से बड़ा है, लेकिन x जैसे ही 1 से छोटा होता है, यानी a और x दोनों अगर ऑपोजिट साइड ऑफ यूनिटी में है, मतलब ये x इक्वल टू 1 लाइन का ऑपोजिट साइड्स में a और n होगा, तो हम क्या कहेंगे, log इज नेगेटिव। लेकिन दोनों अगर सेम साइड में है, देखो यहाँ पे x भी 1 से छोटा लो, देखो बेस ऑलरेडी 1 से छोटा है, log क्या है, पॉजिटिव। देखो इट इज अबव द x एक्सिस फॉर x लाइंग बिटवीन 0 एंड 1। लेकिन यहाँ पे देखो बेस 1 से बड़ा है, नंबर भी 1 से बड़ा है, तो देखो दोनों अगर 1 से बड़ा है तो ये क्या बन गया, पॉजिटिव। तो ये एक छोटा सा बात याद रखना कि whenever the number and the base both of them are on same side of unity, log is always going to be positive. But if both of them are on opposite sides of unity, log will be always negative. Correct? Yes, sir. बेस अगर 1 से बड़ा है तो log क्या होगा, इंक्रीजिंग। log का नेचर क्या है, बेस अगर फ्रैक्शन है तो Decreasing. डिक्रीजिंग। करेक्ट, तो ये बेसिक बात याद रहेगा इससे। log एक्चुअली है क्या किसी भी नंबर का, इट इज द पावर टू विच द बेस शुड बी रेज्ड इन ऑर्डर टू गेट द नंबर। क्लियर? इसको मिटा दें बच्चे। Yes, sir. अब मैं पहले तुम्हें वही एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज बताऊंगा, उसमें से कुछ नो डाउट तुम लोग पहले से जानते हो, हाँ, लेकिन वो भी मैं रिपीट जरूर करूंगा सो दैट यू हैव अ रीकैप ऑफ थिंग्स। लेकिन ये करने से पहले ये बताओ, अगर मैंने a टू द पावर x को m लिखा, ठीक है, तो यहां पे log का डेफिनेशन से log m विथ रेस्पेक्ट टू बेस a को क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। Yes, sir. a टू द पावर y अगर n है तो बताओ log n विथ रेस्पेक्ट टू बेस a इज हाउ मच, y। इसमें कोई डाउट? और No, देखो sir. m और n दोनों हमारा पॉजिटिव क्वांटिटी है कि नहीं, बोथ ऑफ देम आर पॉजिटिव। Yes, अब sir. प्रॉपर्टीज हम एक साइड में लिख देंगे, लेकिन पहले समझ लो। देखो पहला एलिमेंट्री प्रॉपर्टी देखो ये आता है, देखो कोई भी वैलिड बेस हो उसका पावर 0 करोगे तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। तो हम यहां से पहला कंक्लूजन या कह सकते हो पहला प्रॉपर्टी ये कहेंगे कि log of 1 with respect to any valid base is always how much, 0. 0. So this is your first basic property. अब बताओ a का पावर 1 क्या देगा, a देगा। तो हम यहाँ पे log of a with respect to base a क्या लिखेंगे, 1. 1। यानी कभी भी log का नंबर और बेस, नंबर एंड बेस, if both of them are same, so then you will say that it is nothing but going to be equal to 1. अच्छा, तुम लोगों को दिखाई क्लियरली पड़ रहा है? Yes, sir. विजिबिलिटी में कोई दिक्कत? No, sir. अच्छा, कभी भी समस्या होगा तो तुरंत बताना, ठीक है। देखो तीसरा, अब यहाँ पे आता है, देखो a टू दी पावर, इनफैक्ट मैं पहले डिराइव कर रहा हूं, ध्यान से देखो, a to the power x into a to the power y will be m into n, yes or no? Yes. देखो ये स्टेप लिख सकते Yes, हैं। sir. Yes, तो sir. a का पावर x प्लस वाई mn हो गया। तो देखो ये दो पॉजिटिव नंबर्स का प्रोडक्ट, एक पॉजिटिव नंबर है,
So log of mn with respect to base a, according to the definition, we can write x plus y. Now tell me, what is x? It is log m. And what is y? It is log n. So this can be further written as log m with respect to base a plus log n with respect to base a. So log of mn with respect to base a can be written as log m plus log n. Correct? लेकिन ये हम तभी लिख सकते हैं, याद रखो, जब m और n दोनों पॉजिटिव है, तभी ये लिखा जा सकता है. ठीक है, ये भी तुम पढ़े हो. इसका मतलब क्या है? देखो, अगर मैंने log of product of n numbers लिखा, तो that can be written as logarithm of individual numbers का sum लिख सकते हैं. Yes sir. लेकिन हर नंबर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है. अब बताओ, a to the power x by a to the power y, m by n लिख सकते हैं. Yes sir. तो अब इंडिसेस का प्रॉपर्टी से a to the power x minus y, m by n ये कहलाएगा. Yes sir. देखो ये स्टेप. अब लॉग का डेफिनेशन इस्तेमाल करो, क्या लिखोगे बताओ? लॉग ऑफ n, हाँ बोलो. Base a is equals to x minus y. देखो ये लिखे. अब x और y दोनों देखो मैंने पहले ही लिख के रखा है. तो देखो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? log of m by n with respect to base a is log m with respect to base a minus of log n with respect to base a. देखो ऐसा लिख सकते हो. देखो this is your next property. तो जब भी देखो डिवीजन में होगा, तो एक सिंपल सा बात बताओ, अगर मैंने ऐसे लिखा log of a by b into c into d, देखो इसको हम लोग क्या लिखेंगे बताओ? सीधे log a minus log b minus log c minus log d लिख सकते हैं कि नहीं? अब a to the power x whole to the power, मान लो कोई भी पावर दिया मैंने, सपोज अल्फा, तो क्या इसे a to the power अल्फा x लिख सकते हैं? या चलो पहले तो हम इसे m to the power अल्फा लिखते हैं. क्यों? a to the power x को हमने m लिया. ठीक है. अब बताओ यहां से क्या लिखोगे? ए लॉ ऑफ इंडिसेस से इसको हम a to the power अल्फा x इक्वल टू m to the power अल्फा लिख सकते हैं. अब बेसिक डेफिनेशन इस्तेमाल करो, तो log of m का पावर अल्फा विथ रेस्पेक्ट टू बेस है क्या होगा? अल्फा x. Yes. अब x क्या है? देखो log m with respect to base a. So this is in fact your next property, that log of m to the power alpha with respect to base a is alpha times of log m with respect to base a. देखो क्या ये लिख सकते हो? Yes sir. देखो एग्जाम्पल के तौर पे अब मैं अप्लाई करके दिखा रहा हूं. मैंने यहाँ पे लिखा x का पावर 2/3 बाई y का पावर से हाफ इंटू z का पावर से 1/4, और हमने कहा इसका लॉग लो. तो देखो इसमें हम यही सब प्रॉपर्टीज देखो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ का इस्तेमाल एक साथ कर सकते हैं. देखो पहले तो log m by n लगाओ. तो log m by n से क्या लिखेंगे इसको बताओ? क्या इसे log of x का पावर 2/3 माइनस log of y का पावर हाफ इंटू z का पावर 1/4, देखो ऐसा लिख सकते हैं? Yes. तो नेक्स्ट स्टेप में 2/3 टाइम्स ऑफ log x माइनस ऑफ देखो हाफ इंटू log y माइनस 1/4 इंटू log z. देखो कैन वी राइट लाइक दिस? Yes sir. देखो यहां तक तो उम्मीद करते हैं कि यहां तक तुम पढ़े होगे, तो यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. Yes sir. और ये लिख लिए हो बच्चे? Yes sir. Should I rub this one? Yes sir. Okay. अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी. नाउ दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स देखो कोई भी बेस ए लो,
और इसका पावर में मैंने देखो log x विथ रेस्पेक्ट टू बेस a दिया। देखो दिस इज दिस बेस एंड दिस बेस, मतलब बेस ऑफ एक्सपोनेंट एंड बेस ऑफ लॉग ये दोनों सेम है, तो इसका वैल्यू हम सीधा लिखेंगे x। देखो इसका वैल्यू हम सीधे लिखेंगे x। दिस कम्स फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ लॉग इटसेल्फ। देखो अगर a का पावर समथिंग इज इक्वल टू दिस, तो देखो बेसिक डेफिनेशन ऑफ लॉग क्या कहता है? देखो लॉग एक्चुअली इस नंबर का क्या होगा? द पावर टू विच दिस a इज रेज्ड, यानी ये क्या आता है? देखो log x विथ रेस्पेक्ट टू बेस है, देखो यही ना आता है, which is universally true। Yes. बात समझ में आया? तो इसका इस्तेमाल अच्छे तरीके से करना सीखो। मान लो मैंने लिखा 81 का पावर log of 2 with respect to base 3। देखो मैंने ऐसे पूछा, मैंने कहा कि इसका वैल्यू बताओ। तो अब यहां ध्यान दो, 81 को 3 के पावर्स में क्या लिखेंगे? 3 का पावर 4 Yes, sir. इन, और ये log 2 with respect to base 3 लिख सकते हैं बच्चे। Yes, sir. तो अब इंडिसेस का लॉ यूज करो, तो देखो 4 टाइम्स ऑफ log 2 with respect to base 3, क्या ये लिख सकते हैं? Yes, sir. Sir. अब देखो अभी अभी मैंने ये वाला प्रॉपर्टी सिखाया कि देखो log of m का पावर अल्फा, अल्फा log m होता है, तो इसका उल्टा भी तो लिख सकते हो। तो इसका उल्टा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बोलो? क्या इसे 2 का पावर 4 विथ रेस्पेक्ट टू बेस 3 लिख सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. देखो मैंने इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया, ठीक है। अब बताओ ये बेस और ये बेस सेम है, तो अब इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करो, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 to the power 4. Right, and that is how much? 16. I'll be taking up problems, nothing to worry about it. Okay, but first let me explain the elementary properties. I hope you have understood, and this is a very, very important property. Don't forget this. Should I rub the right side? Yes, sir. देखो कहीं भी नहीं समझ में आएगा, हेजिटेट मत करना, तुरंत पूछना, ठीक है? Yes, sir. क्योंकि आगे चल के सारी चीजें मतलब इकट्ठा हो जाएंगी, और कब कौन सा इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है, ये क्वेश्चन ही डिसाइड करता है। अब देखो, अब अगला जो प्रॉपर्टी सिखा रहे हैं उसे कहते हैं बेस कन्वर्शन, राइट? अब ये जनरल प्रॉपर्टी लिखने से पहले मैं कुछ एलिमेंट्री चीज ले रहा हूं, देखो ध्यान से देखना। बताओ 2 to the power 8 कितना होता है? 256 होता है। तो Yes, अब sir. log का डेफिनेशन से हम लोग log of 256 with respect to base 2, can we write this as 8? Yes, sir. Yes, sir. अब बताओ 2 to the power 4 is how much? 16। तो log of 16 with respect to base 2 क्या लिखेंगे? 4। 16 square is how much? 256। तो यहां अगर log का डेफिनेशन इस्तेमाल करते हो, तो log of 256 with respect to base 16 is how much? 2। 2. अब ये बताओ, ये दोनों को डिवाइड करो 8/4, क्या ऐसे लिख सकते हो? Yes, sir. 2 को। अब इसे हम log of 256 with respect to base 2 by log of 16 with respect to base 2, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? Yes, sir. अब जरा ध्यान से देखो, the thing which I want you all to mark, देखो ये एक नंबर है और ये एक डिफरेंट नंबर है। अब यहां देखो मैंने इसको क्या किया, log of the first number with respect to a certain base, और ये बेस का log of the base with respect to the same number जो मैंने ऊपर में बेस लिया है। तो यहां पे हम ऐसे लिखेंगे, देखो log of b with respect to base a, this can be written as log b by log a with respect to the same base। क्या देखो इसी को मैंने जनरलाइज किया है यहाँ पे। देखो ये स्टेप समझ में आया बच्चे? Yes. Yes, sir. अब यहाँ पे हम इसको देखो, तो ये अगर तुम्हारा पहला स्टेप है, तो अब यहाँ पे एक बात मार्क करो,
log a with respect to base b को क्या लिखोगे? सेम प्रॉपर्टी से क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? Yes, sir. Yes, sir. अब जरा इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आता है? देखो, this into log a with respect to base b is 1. So can I write that log b with respect to base a is 1 by log a with respect to base b? देखो, क्या ऐसे लिख सकते हैं? Yes, sir. तो देखो, ये दोनों ही आउटकम काफी इंपॉर्टेंट है जो हम लोग यूज करेंगे क्रिटिकल क्वेश्चंस, और ये बहुत फेमस है बेस कन्वर्जन फॉर्मूला के नाम से। ये बहुत इस्तेमाल होगा अप टिल अंटिल योर क्लास 12। इनफैक्ट उसके बाद भी होगा, ऐसा नहीं है कि उसमें नहीं होगा। देखो, कहीं कोई कंफ्यूजन है बच्चे इसमें? एनीवेयर, एट एनी स्टेप? Should I rub this one? Yes, sir. Okay. अब देखो, अगला प्रॉपर्टी हम यहां से निकालते हैं। अब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। देखो, अब ऐसा अगर कहीं पे दिया log ऑफ अल्फा का पावर m, अब मेरा नंबर ये है देखो, और अब बेस है अल्फा का पावर n, तो यहां पे हम क्या इसे बेस कन्वर्जन फॉर्मूला से ऐसा लिख सकते हैं? बोलो। देखो, this is my b, this is my a, तो I have written it as log b by log a। देखो, इसमें कोई कंफ्यूजन? No, sir. अब वो प्रॉपर्टी जिसमें कि पावर हम लॉग के बाहर ले आ सकते हैं, तो देखो m log अल्फा बाय n log अल्फा, क्या ऐसा लिख सकते हो? Yes, sir. ये कट गया तो वैल्यू क्या बचा? M by M by N. तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फिर से हो गया। देखो, log ऑफ अल्फा टू द पावर m विथ रिस्पेक्ट टू बेस अल्फा टू द पावर n, दैट इज इक्वल टू m by n। देखो, फॉर एग्जांपल इफ आई आस्क यू से log ऑफ, मैंने पूछा 1024 विथ रिस्पेक्ट टू बेस 2√2, मैंने पूछा कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखो, जितना हद तक हो सके क्या करोगे कि इसको सेम टर्म के पावर में एक्सप्रेस करोगे। 1024 is 2 to the power 10। देखो, ये 2 का पावर 1 और 2 का पावर हाफ, 2 का पावर 3/2 लिख सकते हैं। Yes, sir. तो अब ये वाला प्रॉपर्टी इस्तेमाल करो तो ये 10 डिवाइडेड बाई 3/2 यानी 20/3। देखो, इसका वैल्यू आ गया। Yes, sir. अक्षिता, Yes, ये sir. समझ में आया बच्चे? Yes, sir. इसको कैसे यूज किया हम? तो ऐसे जब भी अजीबोगरीब नंबर होगा ना, तो ये हमेशा कोशिश करना कि दोनों को सेम बेस में लाने का। सेम बेस बट पावर्स डिफरेंट, करेक्ट? तो यू कैन गेट द वैल्यू इन जस्ट वन लाइन। ओके, नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी comes from here. Log of, say, m to the power alpha with respect to base n to the power alpha, right? देखो, number and base when they both of them are raised to the same power, तो इनफैक्ट ये इतना आएगा। प्रॉपर्टी मैं पहले लिख दे रहा हूं, फिर समझा दे रहा हूं। देखो, this will all is equivalent to this। देखो how? देखो, लेफ्ट हैंड साइड को बेस कन्वर्शन फार्मूला लगाओ। देखो, can I write it like this? Log of m to the power alpha by log of n to the power alpha। अब बताओ अगले स्टेप में क्या लिखेंगे? देखो, ये पावर बाहर चला जाएगा, ये पावर, ये अल्फा देखो बाहर चला जाएगा, तो अल्फा टाइम्स ऑफ लॉग m, और नीचे क्या होगा? अल्फा टाइम्स ऑफ लॉग n। देखो, अल्फा अल्फा कट गया तो ये log m बाई log n। अब देखो, log b with respect to base a is log b by log a, तो उसका रिवर्स इस्तेमाल करो तो देखो ये log m with respect to base n, देखो इसके बराबर होता है।
देखो, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? Yes, sir. अब देखो एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, देखो सपोज मैंने लिखा log x विथ रेस्पेक्ट टू बेस 2, तो मैं इसको इसी प्रॉपर्टी से सीधा लिख सकता हूं कि log ऑफ x स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू बेस 4 उतना ही होगा, या मैंने इसको लिखा log ऑफ रूट x विथ रेस्पेक्ट टू बेस रूट 2, ये भी उतना ही होगा, या मान लो मैंने लिखा इसे log ऑफ x टू द पावर 4 विथ रेस्पेक्ट टू बेस 2 टू द पावर 4 यानी 16। तो देखो ये सभी एक ही चीज है, उसमें कोई अंतर नहीं, ठीक है। देखो, डिड यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्टी? Yes, sir. सर बोलो। जो एग्जाम्पल अभी आप बताएं वो एक बार फिर से क्लियर कर दीजिए ना। ये वाला यस सर। देखो ये प्रॉपर्टी में क्या है, देखो बच्चे, बेस और नंबर दोनों का पावर जब सेम होगा तो वो पावर तुम हटा दोगे तो भी उसका वैल्यू उतना होगा। और देखो Yes. ये आया कैसे, देखो मैंने यहाँ बेस कन्वर्शन फॉर्मूला लगाया, तो log ऑफ m टू द पावर अल्फा बाय log ऑफ n टू द पावर अल्फा लिख सकते हैं। यस सर। अब ये जो पावर है ये बाहर हम यहाँ पे ले आए, तो देखो Yes, sir. अल्फा इंटू लॉग एम, अल्फा इंटू लॉग एन, अल्फा अल्फा कट गया, तो अब log m बाय log n आ गया। अब देखो Yes. बेस कन्वर्शन फॉर्मूला क्या कहता है कि ये हम लिख सकते हैं, यस सर। राइट, और b की जगह m, a की जगह n डाल दो, तो देखो मैं इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ। देखो ये तो टू वे ना होता है, तुम ऐसे भी लिख सकते हो ऐसे भी लिख सकते हो। तो अब इस यही समझाने के लिए मैंने क्या किया, देखो अगर log x विथ रेस्पेक्ट टू बेस 2 है, ध्यान से देखो, तो मैं दोनों का स्क्वायर कर दिया तो भी इसका वैल्यू पे कोई फर्क पड़ेगा, दोनों का पावर सेम करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां मैंने x स्क्वायर किया और यहाँ 2 स्क्वायर किया, तो 2 स्क्वायर 4 हो गया और ये x स्क्वायर हो गया। Yes. देखो दोनों का पावर हाफ करोगे तो भी कोई फर्क पड़ेगा, No. तो पावर हाफ मतलब क्या होता है, रूट, तो देखो रूट x यहाँ क्या हो गया, रूट 2। अगले में मैंने क्या किया, इन दोनों का पावर 4 कर दिया, तो देखो 2 का पावर 4 16 और x का पावर 4 कर दिया। तो चाहे मैं ये लिखूं या ये लिखूं, ये लिखूं, ऑल ऑफ देम आर सेम, करेक्ट। Okay. Thank you. ये समझ में आया बच्चे? अक्षता Yes, sir. Yes, sir. मिटाए से इसको मिटा दे बच्चा। Yes, sir. अब देखो अगला प्रॉपर्टी, और ये वाला भी बहुत टिपिकल सवालों में यूज होगा, ठीक है। देखो प्रॉपर्टी मैं पहले लिख दे रहा हूं, फर्स्ट लाइन आई एम राइटिंग द प्रॉपर्टी, a टू द पावर log b विथ रेस्पेक्ट टू बेस x इज सेम एज b टू द पावर log a विथ रेस्पेक्ट टू बेस x। देखो यहां पे ध्यान से मैंने क्या किया, देखो log का बेस दोनों में सेम है, ठीक है, log का बेस दोनों में सेम है, खाली इंटरचेंज कौन सा, वो देखो, देखो यहां पे मेरा एक्सपोनेंशियल का बेस a है, नंबर b है, देखो ये बन गया तुम्हारा बेस और ये बन गया नंबर। अब ये कैसे सेम होता है तो मैं अभी समझाता हूं। देखो मैं अज्यूम कर ले रहा हूं कि लेट अस से दिस इज इक्वल टू योर n, मैंने इसको एक नंबर n मान लिया, ठीक है। अब यहां ध्यान दो, मैंने अभी अभी एक प्रॉपर्टी ऐसा सिखाया था, ये दोनों बेस जब सेम होता है तो ये नंबर x के बराबर होता है। देखो ऐसा एक प्रॉपर्टी सिखाया था ना। Yes, sir. तो अब इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करो, तो देखो यूजिंग दिस प्रॉपर्टी कैन आई से b टू द पावर log ऑफ n विथ रेस्पेक्ट टू बेस p इज n, क्या ये लिख सकते हैं? देखो ये दोनों बेस सेम है, Yes, sir. देखो ये स्टेप में कोई गड़बड़ कहीं पे भी, No, कंफ्यूजन, एरर? no, sir. No, sir. तो अब यहां देखो, तो दैट मींस कैन आई से दैट n इज इक्वल टू b का पावर, ध्यान से देखना और सही से लिखोगे तभी क्लियर होगा। अब देखो अब n क्या है मेरा, a का पावर log ऑफ b विथ रेस्पेक्ट टू बेस x, देखो यही ना n है। देखो ये स्टेप समझ में आया? Yes, तो sir. दिस विल बी, अब
अब log का प्रॉपर्टी से ये वाला पावर बाहर आ जाएगा यहाँ पे, देखो this power will come here. Yes. So what will I write? Tell me. Log b with respect to base x into log a with respect to base b. ऐसा लिखेंगे? Yes. So this can be written as, अब देखो, log b by log x into log a by log b. देखो ऐसा लिख सकते हो. बेस कन्वर्जन फॉर्मूला. देखो मैंने दोनों में बेस कन्वर्जन लगाया, तो अब ये log b और ये log b कट गया. बोलो. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो log a by log x को log a with respect to base x देखो लिख सकते हैं. देखो यही ना तुम्हारा राइट साइड में मैंने लिखा है. Yes, sir. डिड यू अंडरस्टैंड दिस? अब बहुत बार तुम्हें इक्वेशन में ये चीज इस्तेमाल करना पड़ेगा. मान लो मैंने क्वेश्चन लिखा 2 to the power log x with respect to base 5. ठीक है, तो देखो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी आई कैन स्ट्रेट अवे राइट दिस एज, ये x बेस में आ जाएगा और ये 2 यहां आ जाएगा. अब देखो अब ये वेरिएबल मेरा आसान हो गया सॉल्व करना. ठीक है, रुको अब मैं पहले ये जो 10 प्रॉपर्टी एलिमेंट्री है इनका इस्तेमाल करके कुछ एलिमेंट्री क्वेश्चंस लेता हूं. ओके, शुड आई रब दिस वन? Yes, sir. क्योंकि इसके बाद जो भी प्रॉपर्टीज आता है अब ग्राफिकल बेस्ड प्रॉपर्टीज आता है, मतलब ग्राफ से ऑब्जर्व करके कि कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, कब कौन सा बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा, तो उस पे आएंगे. लेकिन पहले ये 10 सीखो. शुड आई रब ऑल दिस? देखो इसमें प्रॉपर्टीज में कहीं कोई दिक्कत No, समझने sir. में? No, sir. ओके, ये वाला हो गया लिखना. Yes, sir. 10th वन. Yes. ओके, देखो आई विल स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक लेवल क्वेश्चंस. वेरी बेसिक एग्जांपल. क्यों? तभी तुमको प्रॉपर्टीज क्लियर होगा. जस्ट अ मिनट. हाँ, बेसिक क्वेश्चन होगा तो थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करोगे. अब देखो ये सब का वैल्यूज निकालना है. देखो बेस क्वेश्चंस लिखते भी जाओ, कहीं पे कोई दिक्कत हो तो पूछना. देखो 1 minus 1 by 3 बेस सबका a है. देखो 1 minus of 1 by 4 and like this I have written till say log of 1 minus 1 by n and I ask you what is the value of this. तो सबसे पहले देखो इन टर्म्स को लिखो. 1 minus half is half with respect to base a. This is 2 by 3 with respect to base a. This is 3 by 4 with respect to base a and so on till log of n minus 1 by n with respect to base a. I hope you have understood. I have performed simple subtraction. अभी देखो मैंने log of m into n, log m plus log n लिखा था, तो उसका उल्टा भी तो लिख सकते हो. देखो इंडिविजुअल लॉगरिथम का सम है, तो that is equivalent to what? That is equivalent to the logarithm of product of these numbers. क्या हम ये कह सकते हैं? बोलो. देखो ये स्टेप में कोई दिक्कत? No, sir. अब ध्यान से देखो ये टर्म्स कट रहा है. देखो 2, 3, 4 ऐसे करके कटते आ रहा है. तो ये अगर कटते आ रहा है तो बचा क्या फाइनली? 1 by n. Yes. Can we write this as log 1 minus of log n with respect to base a? log 1 0 हो गया, तो minus of log n with respect to base a. देखो ऐसा लिख सकते हो. अब यहाँ पे देखो एक छोटा सा बात ये भी याद रखना कि in many of the cases देखो कभी भी log of reciprocal of a number, देखो 1 by n minus log n आया, तो ये हम लोग डायरेक्ट भी बहुत सारे केस में लिखेंगे. ठीक है, देखो इसमें कोई कंफ्यूजन? No, sir. ओवर. देखो ये एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज पे एक सवाल तुम लोग का देता हूं. टेल मी द आंसर फास्ट.
log of 75 by 16 with respect to base 2 minus 2 log of 5 by 9 with respect to base 2 plus log of 32 by 243 with respect to base 2. चलो तुम लोग बताओ मुझे आंसर. एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज पे ही है, देखो इसमें कुछ हाई फाई कुछ नहीं लगाना है. सर 1. कुछ गड़बड़ नहीं किया बच्चे? हाँ नहीं सही है, 1 ही है. तुम्हारा है अक्षिता? आप कर रहे हैं, एक सेकंड. 1 सेकंड तुम्हारे बोलते ही खत्म हो जाता है. यस सर 1. हाँ देखो डायरेक्ट यहाँ पे देखो, देखो ये दोनों प्लस है तो इसको हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है. और ये देखो माइनस है और 2 टाइम्स है तो यहाँ पे 25 by 81 सीधा लिख सकते हैं. देखो ये पूरा एक बार में लिख दोगे तो ये कट गया 2 और यहाँ से 3 काट दो तो ये आ गया 25 और ये हो गया 81. अब देखो 25 by 81 भी कट गया तो log 2 with respect to base 2 is nothing but नंबर ऑफ बेस सेम हो गया. चलो अगला सवाल देखो. Find the value of log 17 with respect to base 8 by log of 23 with respect to base 9 minus log 17 with respect to base 2 root 2 by log of 23 with respect to base 3. I ask you the value of this. बोलो. देखो अगर ये वाला प्रॉपर्टी अगर हम लोग इस्तेमाल करें log m with respect to base n, देखो क्या log of m का पावर अल्फा और base n का पावर अल्फा, देखो ये अभी अभी सिखाया था ना. देखो नंबर और बेस दोनों का पावर सेम कर देंगे तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है. देखो दिस प्रॉपर्टी. अब देखो ये ख्याल कैसे आएगा तुम्हारे दिमाग में, तो देखो 2 रूट 2 का स्क्वायर 8 है और 3 का स्क्वायर क्या है 9. तो लुकिंग एट दिस इटसेल्फ यू शुड बी एबल टू जज कि आई हैव टू यूज दिस प्रॉपर्टी. तो देखो पहला वाला को तुम कुछ मत करो, इसको एज इट इज रहने दो. और दूसरे वाले में देखो हम ऐसे लिख रहे हैं, देखो log of 17 स्क्वायर 2 रूट 2 का स्क्वायर 8 हो गया, ये हो गया 23 का स्क्वायर और बेस 9 हो गया. देखो क्या ये लिख सकते हैं? यस सर. अब 17 स्क्वायर तो ये 2 बाहर आ जाएगा और ये 2 भी बाहर आ जाएगा तो क्या लिखेंगे बोलो? log 17 with respect to base 8 by log 23 with respect to base 9 minus 2 log 17 with respect to base 8 by 2 log 23 with respect to base 9. देखो ये कट गया. अब देखो ये दोनों चीज सेम है कि नहीं? अब ये कितना है 0. तो देखो प्रॉपर्टी का इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा है, सॉल्व करने से में जल्दी हो जाता है. यस सर. देखो चलो अगला वाला का आंसर तुम लोग दोगे. लेट मी सी. देखो log 4 with respect to base 3, log 5 with respect to base 4, log 6 with respect to base 5, log 7 with respect to base 6, into log 8 with respect to base 7, and to log of 9 with respect to base 8. Tell me the value of this. You should not take more than 5 seconds to answer this. नहीं बच्चे थोड़ा सा गड़बड़ किए हो कहीं. देखो
मैं स्टेप्स लिख देता हूँ, लेकिन उसके बाद फिर बताता हूँ। देखो पहले वाले को ऐसे लिखोगे। सर 2। हाँ बिल्कुल सही, अब सही है यार। देखो ये कटते जा रहा है डायगोनली कि नहीं। देखो log 7 by log 6, देखो log 8 by log 7, right, into log 9 by log 8। देखो डायगोनली ये सब कट गया, तो फाइनली तुम्हारे पास बचा log 9 by log 3। अब देखो 9 is 3 square, so this will be 2 log 3 by log 3, and that is equal to how much? 2। अगला 3-4 क्वेश्चन भी तुम्हें लोग आंसर दोगे, ठीक है? क्यों? वो डायरेक्ट प्रॉपर्टी के एप्लीकेशन है, इसीलिए। देखो अब मैं इस प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन ले रहा हूं बच्चे। ये कितना होता है? x। अब हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी जो बेस कन्वर्जन वगैरह वगैरह भूल जाओगे, वो भी यूज होगा। चलो पहला आंसर अक्षिता, क्वेश्चन पढ़ पा रहे हो कि मैं फिर से लिख दे रहा हूँ? log 3 with respect to base 5। Tell me the value of this। 81 का पावर 1 by log 3 with respect to base 5। $625। 625 सही है। क्या हो गया अक्षिता, क्यों नहीं आया आंसर बच्चे? देखो 81 3 का पावर 4 हुआ, और देखो यहां बेस कन्वर्जन फार्मूला लगाएंगे तो देखो ये देखो दोनों इंटरचेंज हो जाएगा, log 5 with respect to base 3। So this becomes 3 to the power 4 log 5 with respect to base 3। So 3 to the power log of 5 to the power 4 with respect to base 3, यानी 5 to the power 4, 625। करेक्ट? गड़बड़ कहाँ हो रहा है बताओ? चलो अगला वाला बताओ। देखो क्यूब रूट ऑफ 121 और प्लस 1/3। टेल मी द वैल्यू ऑफ दिस। 8 to the power log of cube root of 121 with respect to base 2 plus 1/3। ये पूरा चीज पावर में है 8 का। बोलो। कितना आया? इतना समय नहीं लगना चाहिए बच्चे। What is the answer you are getting? Sir, I'm trying. थ्री टू सिक्स सेवन। नहीं बेटा, ऐसा गंदा आंसर नहीं आएगा, कुछ गलती की हो। देखो चलो ध्यान से देखो, 8 को हम लोग 2 क्यूब लिखेंगे। यस सर। अब देखो ये 121 का क्यूब रूट, इसका मतलब 121 का पावर, देखो इसे हम 1/3 लिख सकते हैं कि नहीं? बोलो। यस सर। यस सर। तो ये 1/3 बाहर आ जाएगा। यस। तो क्या मैं इसे 1/3 टाइम्स log of 121 with respect to base 2,
और प्लस 1/3। देखो पावर में ये पूरा चीज आ गया। यस सर। अब ये 3 मल्टीप्लाई होगा कि नहीं? तो ये दोनों 1/3 से मल्टीप्लाई होने के बाद क्या बचेगा वहां पे? 1 1, यानी 2 का पावर log ऑफ 121 विथ रेस्पेक्ट टू बेस 2 प्लस 1। अब बताओ a का पावर x प्लस y, a का पावर x इंटू a का पावर y होता है। तो इसको हम लोग 2 का पावर log ऑफ 121 विथ रेस्पेक्ट टू बेस 2 इंटू 2 का पावर 1 ऐसे लिख सकते हैं। अब बताओ ये 121 हो गया और ये 2 हो गया, तो 242 इज योर आंसर। करेक्ट? देखो समझ में आया बच्चे? सर एक बार फिर से समझा दीजिए। देखो सबसे पहला स्टेप यहाँ पे देखना। देखो क्यूब रूट का मतलब होता है पावर 1/3। यस सर। तो देखो ये क्यूब रूट ऑफ 121 को मैंने log ऑफ 121 का पावर 1/3 लिखा। यस सर। अब ये 1/3 बाहर चला गया, तो देखो 1/3 टाइम्स ऑफ log ऑफ 121 विथ रेस्पेक्ट टू बेस 2। देखो ये होगा। यस सर। तो इसकी जगह पे मैंने ये पूरा लिखा। देखो 1/3 टाइम्स log ऑफ 121। करेक्ट? यस सर। अब देखो ये जो 3 है, यहां देखो ध्यान से, ये मैंने एक स्टेप स्किप किया था। तो देखो 2 टू द पावर 3 टाइम्स ऑफ 1/3 1/3 log ऑफ 121 और प्लस 3 इंटू 1/3। देखो ऐसा होगा। यस सर। देखो अब ये 3 कट गया, ये कट गया, तो तुम्हारे पास देखो क्या बचा? देखो ये वाला टर्म पूरा। अब a टू दी पावर x प्लस वाई इंडिसेस का लॉ से हम ऐसे लिख सकते हैं, लॉ ऑफ इंडिसेस। तो देखो मैंने ये पावर, देखो a का पावर x और ये हो गया y, तो a का पावर y। देखो ऐसे लिख दिया। अब यहां देखो ये दोनों बेस सेम है। देखो 2 और 2, तो इसका वैल्यू कितना हो गया? 121 और ये 2 टू दी पावर 1 एज इट इज रहा। ठीक है? यस। देखो ये समझ में आया अक्षिता? यस सर। दिखाई दे रहा है बच्चे? यस सर। समझ में आ रहा है क्लियरली? यस। चलो अगला सवाल आंसर देने का कोशिश करो। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन दे रहा हूं। नाउ आई वांट यू टू आंसर। देखते हैं तुम दोनों में से पहले कौन आंसर देता है। चलो बोलो। टू का पावर 3 माइनस log 3 विथ रेस्पेक्ट टू बेस 2। 8/3। बिल्कुल सही, वेरी गुड। देखो 2 क्यूब इसको लिख सकते हैं a टू दी पावर x माइनस वाई। देखो a टू दी पावर x बाय a टू दी पावर y, तो ये हो गया 8, नीचे वाला हो गया 3, सो 8/3 आंसर। ठीक है? अच्छा थोड़ा बहुत ट्रिगो का आइडिया है? यस सर। tan 90 माइनस थीटा कितना होता है? नहीं आइडिया है तो कोई बात नहीं। cot थीटा। और cot थीटा 1/tan थीटा होता है। यस सर। तो देखो tan थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा विल बिकम हाउ मच? क्योंकि सर तो पढ़ाए होंगे फिजिक्स में भी ये। यस देखो सर। ये 1 हो। ठीक है? एक्चुअली एक क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन उसी के ऊपर है। मैं इसे मिटाऊं? यस सर। ओके। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखो फाइंड द वैल्यू ऑफ log ऑफ tan 1 डिग्री प्लस log ऑफ tan 2 डिग्री प्लस log ऑफ tan 3 डिग्री, राइट? एंड लाइक दिस अप टू log ऑफ tan 89 डिग्री। देखो हमें इसका वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले देखो एक प्रॉपर्टी log ऑफ m इंटू n, log m प्लस log n होता है कि नहीं? यस सर। यस सर। तो उसका उल्टा लिख सकते हैं। उल्टा मतलब देखो log ऑफ
देखो इंडिविजुअल नंबर्स का देखो लॉग का सम है, तो क्या मैं इसे प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑफ देम लिख सकता हूँ? Yes, sir. Yes, sir. देखो tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री और ऐसे करते जाओ। अब यहाँ पे बीच में यहाँ पे देखो tan 44 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 46 डिग्री, करेक्ट? अनलाइक दिस tan of 88 डिग्री और tan of 89 डिग्री। देखो क्या ये ऐसे लिखा जा सकता है? Yes, sir. Yes, sir. देखो अब अभी अभी हमने ये एक रिजल्ट निकाला था। देखो tan थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा इज हाउ मच? 1। तो थीटा अगर 1 डिग्री है, थीटा को अगर 1 डिग्री लेते हो तो tan 1 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री कितना होगा? 1. देखो तो देखो tan of 1 डिग्री इंटू tan of 89 डिग्री, दिस इज 1। tan of 2 डिग्री इंटू tan of 88 डिग्री, और देखो ये भी कितना होगा? 1। 1. तो ऐसे करके tan of 44 डिग्री इंटू tan of 46 डिग्री, नाउ दिस प्रोडक्ट विल आल्सो बी 1। तो अब देखो यहाँ पे पेयर्स बन रहा है, फर्स्ट लास्ट, सेकंड सेकंड लास्ट, थर्ड थर्ड लास्ट। देखो ऐसे पेयर्स बनते जा रहा है, Yes, sir. क्यों? अब ऐसे अगर पेयर्स बनते जा रहा है तो देखो हर पेयर का प्रोडक्ट 1 है। अब बीच में बच गया tan 45। tan 45 डिग्री इज हाउ मच? 1. 1. तो देखो ये कंप्लीट प्रोडक्ट 1 आ गया। तो ये कंप्लीट प्रोडक्ट अगर 1 आ गया तो log of 1 with respect to any valid base is how much? 0. Right? समझ में आया? Yes, sir. देखो कोई इसे मिटा दे बच्चे। Yes, sir. देखो एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ही ना हम यूज कर रहे हैं। देखो पहले की log of sum of n इन टर्म्स लॉग का है, सम के फॉर्म में, तो लॉग ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एन नंबर्स यूज किया, फिर log 1 0 होता है वो यूज किया। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन एक्चुअली मैं आज असाइनमेंट भी तुम लोग को भेज दूंगा। ठीक है, क्योंकि कल तो कुछ खास पढ़ाया नहीं था, तो इसीलिए असाइनमेंट उसके ऊपर पॉसिबल नहीं था तुम लोग को देना, उसको भी बनाओगे। ठीक है, अब लिखो if x is equal to 1 plus log of bc with respect to base a, y is equal to log of 1 plus ca with respect to base b, z is equal to log of ab with respect to base c plus 1। ठीक है, अब वैल्यू निकालो 1 by x plus 1 by y plus 1 by z, इसका वैल्यू कितना होगा? I have asked this, suppose। तो सबसे पहला काम ये करोगे कि देखो यहाँ पे 1 by x, 1 by y, 1 by z है, तो you will try to evaluate कि इसका वैल्यू क्या होता है। तो 1 by x डायरेक्ट मत लिखना। अब यहाँ ध्यान से देखो, टर्म्स में एक सिमेट्री का तलाश करो। देखो यहाँ बेस a है, तो पहले वाले में देखो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, 1 को log a with respect to base a, this one I have written, और अगला वाला ये हो गया log of bc with respect to base a। देखो I have changed this one। अब बताओ इसको हम लोग क्या लिखेंगे, बोलो? Log of ABC. BC. Right, देखो this is your x, तो अब बताओ 1 by x is how much? 1 by log of abc with respect to base a। Now can we use base conversion formula? Yes, sir. तो बेस कन्वर्शन फॉर्मूला से log of a with respect to base abc बन गया। देखो इस स्टेप में कोई दिक्कत? No. अब अगला देखो y के लिए सिमिलरली 1 को, अब देखो अब यहाँ पे जो बेस होगा उसी हिसाब से रिप्लेसमेंट होता है। देखो यहाँ बेस b है, तो ये 1 को हम लोग log b with respect to base b लिखेंगे। ठीक है, और अगला हो गया तुम्हारा log of ca with respect to base b। So this is log of abc with respect to base b। तो 1 by y क्या हो जाएगा बच्चे? चलो एक स्टेप मैं लिखे दे रहा हूं, log of abc with respect to base b यानी log of b with respect to base abc। देखो ये सेकंड इक्वेशन है,
Yes. अब तीसरा बचा z, तो z में अब 1 को हम लोग क्या लिखेंगे बोलो? Log of C base AB. z में ये जो 1 है तो बेस c, और अगला हो गया तुम्हारा log ab with respect to base c, यानी this will become log of abc with respect. ठीक है, कंबाइन कर लिए तो 1 by z क्या हो जाएगा बोलो? अब तुम लोग खुद बोलो, अब तो समझ गए हो प्रिंसिपल. log of C with to base ABC. ABC. अब तीनों को ऐड कर लो. देखो मुझे यही ना चाहिए, तो तीनों को ऐड करेंगे. देखो फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, तो टेल मी 1 by x plus 1 by y plus 1 by z. See, this is log A with respect to base ABC, log B with respect to base ABC, और plus log C with respect to base ABC. अब बताओ ये क्या हो जाएगा बोलो? तुम लोग खुद बताओ. log ABC. log ABC, और बेस तो सबका सेम है. ABC. देखो नंबर और बेस दोनों सेम होने से उसका वैल्यू कितना होगा? 1 1 1. तो 1 by x plus 1 by y plus 1 by z comes out to be how much? 1. ये समझ में आया बच्चे? Yes sir. लिख लिए हो? Yes sir. देख लो कहीं कोई कंफ्यूजन है? No sir. ओके. चलो अगला सवाल लिखो. If A is equal to log of 12 with respect to base 24, okay, B is equal to log of 24 with respect to base 36, C is equal to log of 36 with respect to base 48, then find 1 plus ABC by BC. इसका वैल्यू कितना होगा? ठीक है, तो ये देखो क्वेश्चन में जो टर्म्स तुम्हें पूछा गया है ना, बस उसी को निकालोगे. यहां देखो बच्चे, तो 1 प्लस एबीसी हमको चाहिए, तो लेट्स कैलकुलेट दिस फर्स्ट. तो पहले देखो एबीसी लिखो, ये हो गया log 12 with respect to base 24, log of 24 with respect to base 36, into log of 36 with respect to base 48. अब एक, in just a glimpse you can say what value it is going to give you. See, 24 24 diagonally देखो कट रहा है, 36 Yes. 36 कट गया. So what are you left with? Tell me. 1 by 4. Log 12 plus log. Log 1 by 4 कैसे हो गया? 1 by 4 ऐसे थोड़ी है, डिवाइड कर देंगे. ये log 12 with respect to base 48, ये ना बचेगा. Yes sir. अब बताओ 1 प्लस ए बी सी अब लिखना है, तो देखो इसका बेस अगर 48 है, तो हम ये 1 को log 48 with respect to base 48 लिखेंगे, और प्लस log of 12 with respect to base 48, करेक्ट? Yes sir. तो अब बताओ ये log of 48 into 12 with respect to base 48 होता है? Yes sir. देखो कोई दिक्कत? अब ये बताओ 48 is 24 into 2, Yes. तो 24 स्क्वायर है कि नहीं है? Yes. Yes sir. तो ये log of 24 का square with respect to base 48, or I can also write this log of 24 with respect to base 48. Fine. अब जरा BC को भी कैलकुलेट करो, तो देखो BC is log 24 with respect to base 36 into log of 36 with respect to base 48. बताओ इसका वैल्यू कितना है बच्चे? तुम लोग खुद बोल सकते हो. 4 base 48. वेरी गुड. तो देखो log 24 with respect to base 48, right? अब देखो यहां ध्यान से, तो ये 1 plus ABC यानी कितना हुआ? 2 times of BC हुआ. तो can I say that 1 plus ABC divided by BC is going to give you nothing but 2? Yes. देखो ये वैल्यू यहां से हम पुट किए,
इसका वैल्यू यहां लाके डाला। Yes, sir. तो देखो कभी बेस कन्वर्शन फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं तो कभी ये सब रिप्लेसमेंट्स यूज कर रहे हैं, तो एवरी प्रॉपर्टी जो एलिमेंट्री प्रॉपर्टी है ना, दे कैन बी यूज एनी हाउ, मतलब वो कैसे भी कहीं भी इस्तेमाल होता है। Yes, sir. शुड आई रब दिस वन? Yes, sir. देखो समझने में कोई दिक्कत कहीं पे भी? No, sir. लिखो अगला सवाल। राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अभी हम दिखा दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअली तुम लोग को जो असाइनमेंट देंगे उसमें भी कुछ ऐसा ही सवाल होगा। log 16 with respect to base 6 into 3 plus a by 3 minus a। देखो इसका वैल्यू कितना होगा? फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में सबसे पहला बात समझो, देखो जब भी ऐसा टाइप का नंबर्स दिया, देखो 27, 12 और बेस में 12 है, तो सबसे छोटा जो प्राइम नंबर्स, फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स दैट मेक अप दीज टू नंबर्स, करेक्ट? तो 12, हाउ कैन यू राइट इट? See, 12 can be written as 4 and the prime numbers involved are 2 and 3. Yes. Correct. Now 27 is nothing but 3 cubes, so the prime number involved here is 3. So what are the smallest prime numbers making up these two numbers, 2 and 3? Yes. तो अब सबसे ऐसे हर क्वेश्चन में यही लॉजिक यूज करना है, तो आसानी से आएगा। तो मेरा टारगेट ये है कि मैं इसको निकाल लूं, इसका वैल्यू निकाल लूंगा, किसके टर्म्स में? ए के टर्म्स में। तो अब ये करने का तरीका क्या है? देखो बेस कन्वर्जन फॉर्मूला लगाओ और देखो बेस ये छोटा वाला प्राइम नंबर को रखो और यहां पे हम लिखेंगे log 12 विथ रेस्पेक्ट टू बेस 2, और ये कितना है? 8a। देखो डिड यू अंडरस्टैंड दिस स्टेप? Yes. तो अब इसे log of 3 cube with respect to base 2। अब देखो log of 2 square, right, into 3 with respect to base 2, and that is a। देखो ये स्टेप समझ में आया? Yes, sir. तो नेक्स्ट स्टेप में देखो 3 times of log 3 with respect to base 2। अब यहां तुम लोग खुद बताओ, देख के अगर तुम बता दिए तो मुझे समझाना नहीं पड़ेगा। इसको क्या लिखेंगे? log of 2 square plus log 3 with respect to base 2। Yes, So sir. log of 2 square with respect to base 2 will be 2, 2 log 2 Right. base 2. that becomes how much? log 2 with respect to base 2 is 1। Yes, sir. देखो इसका, देखो नहीं समझ में आया तो हेजिटेट मत करना, ठीक है? देखो ऐसे लिख सकते हो पहला स्टेप में। अब देखो ये पावर 1 है, ये 2 है, तो वो प्रॉपर्टी यूज करो सीधा। तो 2 by 1 कितना हो गया? 2। तो देखो 2 आ गया और ये एज इट इज रहा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, देखो 3 times of log 3 with respect to base 2 is 2a plus log 3 with respect to base 2 into a। तो देखो यहां 3 minus a into log 3 with respect to base 2 is 2a। तो log 3 with respect to base 2 का वैल्यू 2a by 3 minus a, देखो ये आ गया। और मैंने क्या टारगेट दिया था? सबसे छोटे जो प्राइम नंबर्स हैं तो उनका लॉग एक दूसरे के रेस्पेक्ट में बेस निकाल लेना। अब ये क्यों निकालना होता है? अब यहां देखो इसका वैल्यू चाहिए, तो ऐसा नहीं कि मैं a का वैल्यू पुट करूंगा या किसी का, वो करने जाओगे तो अननेसेसरी क्वेश्चन बड़ा हो जाता है। अब यहां देखो इसका वैल्यू अब हम निकालने का कोशिश कर रहे हैं। तो कैन आई राइट दिस इन दिस मैनर? देखो क्या ये स्टेप समझ में आया? देखो आई हैव यूज्ड बेस कन्वर्शन फार्मूला, हमने यूज किया, ठीक है? अब बताओ इसका वैल्यू कितना होगा? देखो ये 2 to the power 4 base 2 log of 2 into 3 with respect to base 2, और ये 3 plus a by 3 minus a। देखो ऐसा आता है।
Yes, sir. चलो इसका वैल्यू बोलो बच्चे। 4 by 4 बाई, आगे बोलो। 4 by 1 plus log 3 base 2. बिल्कुल सही। अब देखो मैंने log 3 base 2 का वैल्यू क्या निकाला है, देखो ये वैल्यू ले जाके अब यहां हम पुट करेंगे, ठीक है। तो ये कितना है बताओ, 4 by 1 plus 2a by 3 minus a। ओके, तो देखो ये 4 times of 3 minus a by 3 plus a into 3 plus a by 3 minus a, and the result is how much? देखो 4 आया। Yes, sir. देखो ये समझ में आया बच्चे? देखो कोई कंफ्यूजन किसी भी स्टेप में? No. ओके, ऐसे टाइप का क्वेश्चंस मैं असाइनमेंट में दे दूंगा आज, तुम लोग प्रैक्टिस करना थोड़ा, ठीक है। इसे मिटा दें? एक मिनट, अब एक मिनट। देख लो, कहीं पे कोई स्टेप में कंफ्यूजन है तो पूछो। समझ में आ रहा है दोनों को? यस सर। प्राची, Yes, sir. एनी डिफिकल्टी एनीवेयर? No, sir. एक्चुअली पहले ये एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज पे हम लोग स्ट्रॉन्ग ग्रिप बनाएंगे, तभी ग्राफिकल बेस्ड प्रॉपर्टीज को करने में आसानी होगी, ठीक है। अभी मैं, अब देखो यही एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज पे, अब अभी तक तो देखो ये वैल्यू वाला क्वेश्चंस कर रहे थे, अब वेरिएबल वाला क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, जिसमें इक्वेशन से वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स निकालना होता है। देखो अब हो गया अक्षिता? यस सर। ओके, सो आई एम राइटिंग डाउन अ कपल ऑफ क्वेश्चंस, उसमें से कुछ मैं बताऊंगा और कुछ तुम लोग करोगे, ठीक है। लिखो, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। एक साथ क्वेश्चन पहले लिख लो। तो पहला क्वेश्चन है, देखो लॉग ऑफ, क्वेश्चंस पहले लिख लो फिर हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। log of x plus 3 with respect to base 3 is what? Log base 2, then log ka base 4, log x with respect to base 5. Now this is equal to 0. Now log of 2 minus x with respect to base x should be equal to 2. Now 5 to the power 2 log x with respect to base 5 minus x minus 6 equals to 0. Log x का whole square minus 3 times of log x is equal to log of x square minus 4. Log x with respect to base 5 plus log of 5 with respect to base x is 5 by 2. X plus 1 का power log of x plus 1 is equal to 100 times of x plus 1. चलो पहले आज के लिए हम लोग यही 7 पहले करते हैं, ठीक है। अब ये बात याद रखना जो मैंने एकदम बिगिनिंग में बताया था। देखो यहां मैंने कोई बेस नहीं दिया है, इसका मतलब बेस कितना है? 10। देखो यहां भी मैंने बेस कुछ दिया है? नहीं दिया, मतलब बेस क्या हो जाएगा? बाय डिफॉल्ट 10। लेकिन देखो बाकी जगहों पे यहाँ बेस है, यहाँ बेस है, तो जहां पे बेस दिया हुआ है तो वही उसका बेस होगा, करेक्ट? देखो, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? यस अब सर। मैं इक्वेशन का बेसिक थ्योरी क्या है, तो देखो सॉल्व करने से पहले या कुछ भी करने से पहले लॉगरिथम के टर्म्स डिफाइंड कब हैं वो लिखोगे। तो देखो अप्रोचिंग द फर्स्ट क्वेश्चन, ये बताओ यहां ये बेस मेरा फिक्स्ड है,
लेकिन नंबर तो वेरिएबल है, तो पहला वाला डिफाइंड होगा अगर x प्लस 1 पॉजिटिव है, यानी x ग्रेटर देन -1 एंड x plus 3 is positive, means x is greater than -3. Yes or no? Yes, sir. देखो क्या अब देखो एंड है, तो देखो इसको हम लोग पहले इंटरसेक्शन लेंगे, कॉमन रीजन देखो ग्रेटर देन -3 ग्रेटर देन -1, बताओ दोनों का कॉमन रीजन क्या है? -1 ग्रेटर देन -1 -1 यानी -1 टू इंफिनिटी, राइट? तो याद रखो x बिलोंग्स टू -1 से इंफिनिटी, ये रीजन है जहां पे तुम्हारा ये दोनों डिफाइंड है। तो सॉल्यूशन जो आएगा इसी इंटरवल के अंदर आना चाहिए, इसके बाहर नहीं, ठीक है? अब बताओ log a प्लस log b क्या लिखेंगे बोलो? log a b लिखेंगे? तो देखो मैंने log ऑफ a इंटू b लिखा, बेस 3 और ये 1, ठीक है? तो अब log का फंडामेंटल डेफिनेशन से देखो ये नंबर क्या होगा, देखो यही ना मेरा नंबर है, तो नंबर विल बी दिस बेस रेज टू दिस पावर, यानी 3 का पावर 1, यही होगा, ओके? अब मल्टीप्लाई करो तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 3, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x 0, सो x इंटू एक्स प्लस 4 तो x क्या आया, 0 या -4? Yes, sir. लेकिन बताओ ये जो इंटरवल मैंने पहले बताया इसमें कौन सा वैल्यू है? ये दोनों में से 0, तो ये -4 एक्सेप्टेबल नहीं है, यानी x इक्वल टू 0 इज माई ओनली सोल्यूशन। देखो ये समझ में आया? Yes, sir. लिख लो फटाफट। अब देखो मैं पहला 3 दिखा देता हूं, उसके बाद फिर अगला बाकी तुम लोग करोगे। शुड आई रब दिस वन अक्षता? yes sir, yes ये sir, लिख लियो प्राची। अब देखो अगले वाले क्वेश्चन में अब सिंपल डेफिनेशन ऑफ लॉग देखो निकालो। तो यहां ये बताओ ये मेरा बेस 2 है, तो ये प्रॉपर्टी सिखाया था याद करो, देखो ये हमेशा 0 होता है, हाँ या ना? yes sir, yes sir, तो देखो ये मेरा नंबर है, ये नंबर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, क्यों? yes sir, तो अब बेस 4 है, तो अब बताओ log x विथ रेस्पेक्ट टू बेस 5 शुड बी 4 का पावर 1, फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ लॉग, yes sir, मतलब एंटी लॉग ले रहे हैं। अब x क्या लिखोगे बोलो? 5 का पावर 4 यानी 625। देखो आसानी से आता है। देखो डिड यू अंडरस्टैंड दिस? yes sir, अब देखो यहां जब दोनों वेरिएबल हो, देखो नंबर भी वेरिएबल है, बेस भी वेरिएबल है, तो ऐसे केस में पहले ये निकालना कि लॉग वैलिड कर रहा है। तो देखो वैलिड होने का कंडीशन नंबर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव, यानी x लेस देन 2। बेस क्या होना चाहिए? पॉजिटिव, और बेस 1 नहीं होना चाहिए। तो देखो x ग्रेटर देन 0 लेस देन 2 बट नॉट इक्वल टू 1, तो हाउ विल आई राइट? I'll write x belongs to 0 to 1 union 1 to 2। देखो क्या ऐसे लिख सकते हैं बच्चे? yes sir, देखो ये कंडीशन में मेरा ये डिफाइंड है, यानी आंसर इस इंटरवल के अंदर जो आएगा वही एक्सेप्टेबल है, बाकी एक्सेप्टेबल नहीं है। अब बताओ फंडामेंटल डेफिनेशन से क्या लिखोगे इसका वैल्यू बोलो? ये नंबर है मेरा, ये बेस है, तो देखो क्या हम लिखेंगे? नहीं दिख रहा है।
सर पॉज हो गया देखो था, अभी दिख रहा है। अब दिख रहा है। ओके, तो देखो 2 माइनस एक्स क्या एक्स स्क्वायर होगा? देखो Yes, बेस sir. का पावर 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 0 हो गया। तो x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 देखो 0 हो गया। तो x माइनस 2 और 1 देखो ये दो वैल्यू आता है। बट नाउ टेल मी कि ये दोनों में से कोई वैल्यू क्या इस इंटरवल के अंदर है? No. 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 तो क्या इसका कोई सोल्यूशन होगा? No, sir. तो इट विल नॉट हैव एनी सोल्यूशन, तो आई विल से नो सोल्यूशन हियर। देखो कुछ तो तुम्हें समझ में आया होगा इक्वेशन का लॉजिक। Yes, sir. चलो पहले ये अब तुम लोग सॉल्व करोगे, ठीक है? आज हम थ्योरी और नहीं पढ़ाएंगे। एंड आई विल बी सेंडिंग यू सम असाइनमेंट्स, मैं कुछ पोस्ट कर दूंगा, ठीक है? सेम व्हाट्सएप ग्रुप। Prachi, can you hear me? Yes, sir, now I can hear you. ओके, वो व्हाट्सएप वाले ग्रुप में तुम्हारा एक्सेस है? Yes, sir. अच्छा ठीक है, तो उसी में मैं असाइनमेंट पोस्ट कर दूंगा, ठीक है? Yes, sir. ओके ठीक है, चलो आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। ओके Yes. ओके Thank you, sir. ओके।